ऑफिसर के पोस्ट में थे आप? नहीं, हाँ। मेरे को उस ऑफिस में ही पोस्ट किया गया था जहां मैंने ज्वाइनिंग किया था। आई एम एट द पोस्ट ऑफ टीचर एलबी। जो इसमें मतलब जब तक इफ द मैलॉर्ड में वेरी क्लैरिफाइड, आई एम ज्वाइंड इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एंड द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस ऑफिसर। आप लिखे नहीं दैट पिटिशनर वाइड ऑर्डर पोस्टेड टू डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हाँ, तो इसको मैंने कंप्लाई करके जिला मैंने शिक्षा अधिकारी के पद पे पोस्ट किए क्या आप? उसके ऑफिस में पोस्ट करेंगे। कहाँ लिखे हैं? ये तो लिखा मैलॉर्ड। क्या लिखे? एंड द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड में बात में जाइए। एंड द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेमेतरा रिलीव द पिटिशनर टू द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेमेतरा। मैं वही फिर बेमेतरा में घूम रहे हैं। मैं बेमेतरा में रहूंगा ना, क्योंकि ये व्हाट आई एम सब्सटेंशियलिंग मैलॉर्ड क्या हुआ है, इसकी पैरा 4 देख लेंगे मैलॉर्ड। दैट द पिटिशनर हैज नॉट बीन रिलीव्ड एट द गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुठपुरी। अब मेरे को रिलीव, लेट मी सब्सटेंशिएट मैलॉर्ड, मैं जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में ही काम कर रहा हूं, क्योंकि ये हुआ था कि जो मेरी जो पहली जो ट्रांसफर ऑर्डर हुआ था दैट हैज बीन नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैलॉर्ड, इफ द मैलॉर्ड में कम टू द रिकॉर्ड ऑफ 8013 इट विल बी वेरी मच क्लियर। नो if the Malord may having the record of 8013, or either I will not go through on the record. I will file the copy of the petition of WPS. What was the status is not mentioned in the impugned order. Then how court can ascertain? It can't be Court will Malord not because it is a interim order. It is not a final order, Malord. You may raise your grievance before concern. Malord, what my submission is this: if the Malord may permit for a moment, जो 8013 की जो petition है, मैं उसकी कॉपी को फाइल। कोर्ट विल नॉट गो टू द रिट पिटिशन। My lord, this is not a case whereby the matter has been adjudicated by the honorable court. ये एडजुडिकेट तो हुआ नहीं है, ये मैटर तो अभी भी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। दिस कंटेम्प्ट कोर्ट विल नॉट कंसीडर एनीथिंग। My lord, when this order of status has been passed, what was the status? Status means I am in the office of district education officer बेमेतरा। You had said that you have not been permitted to join. वहां तो मेरे को काम करने नहीं दिया जा रहा है। काम करने में आ गए ना, पहले ज्वाइनिंग का परमिशन नहीं दे रहे थे, बोल रहे हैं अभी काम का परमिशन नहीं बोल रहे। What my submission that my lord, that मुझे वहां काम, मेरे को सैलरी भी नहीं मिल रही है। Even that point is considered, my lord. You may raise your grievance with regard to salary before the writ court, where your case is pending. My lord, but that you are not being paid to salary. My lord, that is enough. My lord, but वो मेरा ये कहना है कि जब स्टेटस को हुआ है, what was the status? Neither you have pleaded nor it has been mentioned in the order. What my submission? It may be kept in the after review. मैं WPS को 8013 लगा देता हूँ उसकी पूरी कॉपी, the picture will be very much clear. No, my lord has very much clear. My lord will be convinced also. I will not convince. My lord, you should have to plead in your petition. My lord, that will while not, pass, while no, Mr. My lord, it will Jain not be required also. No, because it is not a matter which has been adjudicated. मेरा ये कहना है फॉर ए मोमेंट, इसको आप एक हफ्ते बाद दीजिए, क्योंकि क्या होगा, ये मैटर एडजुडिकेट नहीं हो गया है जिसमें मैं पूरी प्लीडिंग लूं, क्योंकि मैटर पेंडिंग है हाई कोर्ट में। यू शुड हैव टू प्लीड इन कंटेम्प्ट पिटिशन दैट व्हाइल पासिंग ऑर्डर ऑफ स्टेटस को व्हाट वाज द स्टेटस। My lord, if the my lord, neither it has been mentioned in your petition nor it has been mentioned in the impugned order. My lord, what my say? Only status quo is there. The order is there. That order is not been impugned. Impugned means on the basis of which this My lord, contempt is. this order has been passed in favor of the petitioner. Sir, of the petitioner, okay. Exactly. Status quo order was passed in your favor. You should have to plead in your pleading that what was the status when this order was passed. My lord, and this is that status, how that status has been disturbed. My lord, what my submission? अरे आप लोग जब तक ये WPS जो 8013 जो है, जो कि मैटर पेंडिंग है, उसमें मैं जब फाइनल डिसाइड नहीं हुआ तो मैं उसको अमेंड भी कर देता हूँ। यदि मैलॉर्ड में इंक्लाइन फॉर दैट मैलॉर्ड, आई विल ब्रिंग एडिशनल फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड। चलिए ठीक है, आप अपने पिटीशन में ये बता दीजिए व्हाट वाज द स्टेटस व्हाइल पासिंग दिस 6-10-23 ऑर्डर। हाँ, बताइए पिटीशन में, बताइए इस कंटेम्प्ट पिटीशन वेयर यू हैव मेंशन। मैलॉर्ड, व्हाट माय सबमिशन, दिस विल बी नॉट बीन क्लियर बिकॉज दिस पिटीशन इज पेंडिंग। है दिस जो पिटीशन है, जो है जिसके अगेंस्ट में कंटेम्प्ट लगा रहा हूँ जिस ऑर्डर में, दैट पिटीशन इज स्टिल पेंडिंग। और नहीं, ये वी आर इन दी कंस्ट्रक्शन मैलॉर्ड बिकॉज द रिकॉर्ड्स ऑफ दी जो ये जनरल कंटेम्प्ट तब होगा कोर्ट वाज पास स्टेटस को ऑर्डर। जस्ट अ मिनट कोर्ट पास स्टेटस को ऑर्डर, ईदर इट शुड हैव बीन मेंशन्ड इन दैट ऑर्डर that this is the status that petitioner was pending in posting in Bemetara district education officer. Subsequently he has been transferred
है ना, therefore status quo is order of status quo is passed. मतलब इसमें इंटरिम इसलिए नहीं दिखते हैं इन द जनरल प्रैक्टिस दियर बिकॉज दिस मैटर इज स्टिल बीन एडजुडिकेटेड। ये मैं बोल रहा हूं। एडजुडिकेटेड स्टेटस लिखने में एडजुडिकेशन कहाँ से आ गया? क्या होता है, एक जनरल प्रैक्टिस यही होती है। जनरल प्रैक्टिस में स्टेटस को भी इन द सिविल सूट्स आल्सो एंड इवन द सर्विस मैटर व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट इज पास द स्टेटस को भी शुड बी मेंटेन। व्हाट विल द स्टेटस को? दैट विल बी सब्जेक्ट टू द पिटिशंस। कि अब जो पिटिशन जब अंडर को होगी तब क्लियर हो जाएगा। दैट इज everything is okay. If you have not filed contempt petition, if you are filing contempt petition, you should plead in your petition that at the time of passing status order of status quo, position was this, which has been disobeyed by respondent. Therefore, it is contempt. Allowed the contempt petitions are listed along with the records. Along with record, इसका मतलब ये नहीं है कि आप pleading में कुछ प्लीड नहीं करेंगे। Then it is not required. When the records are there, which are being admitted. No. You cannot get benefit of record. मैं तो I am just No. the You should contempt have of the court's order. No. Contempt है, क्या contempt है ये क्लियर करना, it is your duty. What my submission? चलिए मिस्टर सी जयंत के आफ्टर 2 वीक में दे देता हूँ। आफ्टर 2 वीक में इसको मैं फाइल कर देता हूँ। जो WPS जो है 8013 कैजुअली पिटीशन फाइल किए हैं। मतलब पेंडिंग पिटीशन में मैं रिकॉर्ड में मैं कैसे मेंशन कर दूं कि ये क्लियर ही है, क्योंकि व्हेन द कोर्ट इज आपको नहीं करना है, आपको ये लिखना था 6/23 को व्हेन दिस ऑर्डर स्टेटस को ऑर्डर वाज पास। व्हाट वाज द स्टेटस? आई एम इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन वेयर यू हैव स्टेटेड माय लॉर्ड द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रिलीव द पिटिशनर टू द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बेमेतरा। तो उसी में ज्वाइन कर रहे हैं, उसी में रिलीव कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हो रहा है, मैं बता रहा हूँ उसको क्या हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप अपना पैरा 3 खुद ही पढ़िए कि वहीं से ज्वाइन किया, वहीं रिलीव की। इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इसलिए मैनर को लग रहा है क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर था उन्होंने हमारे ऑर्डर को कैंसिल किया। पर पिटीशन लिस्ट में आफ्टर 2 जनवरी के फर्स्ट वीक में रख देंगे। आफ्टर 2 चलिए। बेमेतरा से रिलीव किए, बेमेतरा में ज्वाइन किया। पैरा 3 पढ़िए आप, बेमेतरा में घूम रहे हैं। मैं वहीं पे घूमूंगा क्योंकि जो मेरा जो ऑर्डर था जिला शिक्षा अधिकारी ने कैंसिल किया, तो ज्वाइन अपने यहाँ ही ज्वाइन करवाया। ज्वाइन नहीं कराया आपके यहाँ? कराया ना, अपने यहाँ ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ज्वाइन कराया आपके ज्वाइनिंग कराया, सब्सिक्वेंटली यू आर ट्रांसफर्ड टू सम आउटर। हाँ, उसपे स्टे हो गया। हाँ, आउटर उसपे स्टे हो गया। हाँ, वो स्टे जब हुआ उसके बाद मैंने रिलीव कर दिए। देखिए ना, जब वो ऑर्डर स्टे हुआ उसके बाद मेरा रिप्रेजेंटेशन डिसमिस कर दिया, उसके बाद रिलीव नहीं किया, मैंने यहाँ से स्टेटस को ले लिया। तो मेरी जो पोजीशन रहेगी बेमेतरा नहीं रहेगी। जिग जैग करते रहिए। वो इन्होंने किया ही ऐसा जिग जैग। आई विल सफिशिएंट अलॉन्ग विद द रिकॉर्ड ऑफ 801। चलिए, सीरियल नंबर 8 श्री उत्तम पांडे